Hello students, most welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and you are watching an important series of 15 lectures containing 150 important questions of the topic trigonometric ratios and identities for JEE Math. So students, all these 150 MCQs are selected from your favorite books Cengage Mathematics and Objective Mathematics by R.D. Sharma. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज फॉर JEE Main. And this is the first question of the first lecture. Let f of theta equal to sin theta into sin theta plus sin of 3 theta, then whether this f of theta is less than or equal to 0 or greater than or equal to 0 for different conditions on theta. तो हमें इस फंक्शन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा. सी दिस फंक्शन क्वेश्चन नंबर 1 of the first lecture trigonometric ratios and identities for JEE Main. So here f of theta is, मैंने फंक्शन लिख लेता हूँ. क्या दिया है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा. सो वेदर दिस फंक्शन f of theta is less than or equal to 0 और greater than or equal to 0, ये हमें फाइंड आउट करने का है. वी विल सिंप्लीफाई दिस फंक्शन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा. साइन ऑफ 3 थीटा हम यूज करेंगे. सो साइन थीटा इंटू दिस साइन थीटा प्लस व्हाट इज साइन ऑफ 3 थीटा. ट्रिपल एंगल फार्मूला यूज करने का है. 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. साइन ऑफ 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. सो दिस बिकम्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा. क्या होगा? 4 साइन थीटा minus this 4 sin cube theta. So this will be taking 4 sin theta मैं कॉमन ले लेता हूँ इस ब्रैकेट से. So 4 sin theta अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा 4 sin स्क्वायर थीटा. 4 sin थीटा कॉमन माइनस 4 कॉमन है, sin थीटा कॉमन निकला है तो यह बनेगा sin स्क्वायर थीटा. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 sin square theta and 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. This is 2 sin theta into cos theta का whole square होगा and 2 sin theta cos theta is sin of 2 theta उसका square होगा. So this is the f of theta. f of theta एक्चुअल में हमें मिला क्या है? sin of 2 theta का whole square यानी sin square of 2 theta. And we know very well that square of every real number is always greater than or equal to 0. So this sin square of 2 theta is always greater than or equal to 0. Whatever may be the value of theta, either theta is less than 0 or greater than 0. So for all real values of theta, this sin square 2 theta means this f of theta will be always greater than or equal to 0. तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में greater than or equal to 0 है. So this is in the third option and this third option is correct. Okay. Question number 2. I have to find the minimum value of this function f of x, and the given f of x in the question sin x upon square root of 1 minus cos square x plus cos x upon square root of 1 minus sin square x plus tan x upon square root of sec square x minus 1 plus cot x upon square root of cosec square x minus 1. We have to find the minimum value of this function whenever it is defined. Okay, तो पहले हम इस रूट को सिंप्लीफाई करते हैं. पूरे आइडेंटिटीज़ हैं. 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. तो पहले इस फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉडुलस फंक्शन है. सी हियर. सो अगर मेरे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा फंक्शन है तो उसे मैं कहता हूँ मॉड ऑफ एक्स, एंड दिस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर दैन 0 एंड दिस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस दैन 0. तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करने की है टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. सो सी स्टूडेंट्स,
दिस एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, and root of sin square x will be equal to mod of sin x. So it is mod of sin x plus cos x upon 1 minus sin square x is cos square x, root of cos square x is mod of cos x, plus similarly this will be equal to tan of x upon sec square x minus 1 is tan square x, and square root of tan square x is mod of tan x plus cot x upon this will be mod of cot x. Right, cosec square x minus 1 is square root of cot square x, that will be equal to mod of cot x. तो इसकी मिनिमम वैल्यू किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो पहले हमें इस x जो एंगल है उसका क्वाड्रेंट क्या होगा, उस पर ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड है. सो फर्स्ट वी कंसिडर दैट x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो दिस f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर ये x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x लाइज इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा कंसिडर करते हैं. तो x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो sin x पॉजिटिव होगा, cos x पॉजिटिव होगा, tan x भी पॉजिटिव होगा, cot x पॉजिटिव होगा. ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो मॉड ऑफ sin x बनेगा sin x, मॉड ऑफ x इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0. तो sin x, cos x, tan x, cot x all are greater than 0. So it is sin x, this is cos x, this is tan x, this is cot x. तो sin x अपॉन sin x 1 बनेगा, cos x अपॉन cos x 1 बनेगा. सीयर ऐसा होगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस tan x अपॉन tan x प्लस cot x अपॉन cot x. सो दिस विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1. तो इसकी वैल्यू होगी 4. 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 इफ x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. नाउ वी विल टेक द केस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या होगा देखेंगे, x लाइज इन second quadrant. So it is again mod of sin x, mod of cos x, mod of tan x, mod of cot x. Now we know if x lies in second quadrant, so in second quadrant only sin and cosec are positive. तो यहाँ पे sin पॉजिटिव होगा. So mod of sin x is equal to sin x, तो ये बनेगा sin x अपॉन sin x. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, so cos x is negative, it means cos x is less than 0. So cos x is less than 0, therefore mod of cos x becomes minus cos x, तो ये बनेगा माइनस cos x. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan भी निगेटिव होता है, so mod of tan x becomes माइनस tan x. सेकेंड क्वाड्रेंट में cot भी निगेटिव होता है, तो mod of cot x बनेगा माइनस cot x. तो यहाँ पे वैल्यू कैसे बनेगी देखो, this f of x will be equal to 1 minus 1 minus 1 minus 1, so it becomes minus 2. So this is the value of this function in if x lies in second quadrant. Now we consider the third case, if x lies in third quadrant. अगर x third quadrant में है, this is the second quadrant की केस. अब third quadrant में क्या होगा, सीयर फिर से मैं इसे mod लिख देता हूँ, mod of sin x, mod of cos x, mod of tan x, mod of cot x. Right. So here what will happen, if x lies in third quadrant, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब रेशो नेगेटिव होते हैं. सो sin x इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो sin x इज लेस देन 0, देयरफॉर mod of sin x becomes माइनस sin x. थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, mod of cos x becomes माइनस cos x. ओके, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है, तो ये mod of tan x इज tan x एंड mod of cot x इज cot x. तो अब देखिए वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगी मुझे माइनस 1 प्लस 1, तो इस तरह से मुझे आंसर मिल जाएगा 0. अब लास्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की भी केस हम कंसिडर करते हैं. इफ़ x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर से मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ, mod of sin x, mod of cos x, mod of tan x, mod of cot x. ओके, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से रेशो पॉजिटिव होते हैं? इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव एंड sec इज पॉजिटिव, तो cos पॉजिटिव होगा. सो cos x अपॉन mod of cos x इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये
cos x अपॉन cos x बनेगा. Sin, tan and cot are negative in fourth quadrant. So this is sin x upon minus sin x. This will be tan x upon minus tan x and this will be cot x upon minus cot x. तो यहाँ पे मुझे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी -1 + 1 -1 -1. ओके, तो इस तरह से मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी फिर से -2. अब इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, विच इज़ द मिनिमम. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -2. देखिए -2 मिनिमम है. 4 -2 0 -2 में मिनिमम क्या है, -2. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -2. सी द ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो -2 इज इन द सेकेंड ऑप्शन. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. एंड इन दिस क्वेश्चन अगेन आई हैव गिवन दिस f ऑफ थीटा. और क्वेश्चन में मुझे पूछा है द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. इस फंक्शन की मुझे रेंज फाइंड आउट करने की है. तो रेंज मीन्स अगेन आई हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. ओके, सो गिवन फंक्शन इज दिस f ऑफ थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ थीटा प्लस π/3 प्लस 3. इसे मैं पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ. cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो दिस इज 5 cos ऑफ थीटा प्लस 3 इंटू cos ऑफ a प्लस b लगाएंगे. सो दिस इज cos थीटा इंटू cos a cos b cos π/3 कितना होगा 1/2 माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b. सो sin थीटा इंटू साइन ऑफ π/3 sin 60 कितना होगा √3/2 प्लस 3. इस 3 से ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. मेरा फंक्शन बनेगा 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3 इंटू √3/2 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3. अब देखिए दिस 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा कितना होगा 5 इंटू 2 10 प्लस 3. सो इट विल बी 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3. तो ये मेरा फंक्शन है यूजिंग द फार्मूला ऑफ cos ऑफ a प्लस बी. एंड आई हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, यानी मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट करने की है. तो स्टूडेंट्स मेरे पास कंसेप्ट है, फार्मूला है. अगर फंक्शन एक्सप्रेशन है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम and minimum value of the expression a cos theta plus b sin theta. So if I have this expression a cos theta plus b sin theta, this function is less than or equal to square root of a square plus b square, and this function is greater than or equal to minus root of a square plus b square. Right, you know very well this result. a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू, या इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये देखिए फंक्शन है a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस c है इसमें. तो अगर मैं यहाँ पे c ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे भी c ऐड होगा, यहाँ पे भी c ऐड होगा. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस c इज c plus root of a square plus b square, and minimum value of this function is c minus root of a square plus b square. तो ये फंक्शन इसी फॉर्म में है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c. सो लेस देन और इक्वल टू c प्लस, तो यहाँ पे c कितना है मेरा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 13/2 इज द वैल्यू ऑफ a, माइनस 3√3/2 इज़ द वैल्यू ऑफ b. सो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे लिखने का है. 13/2 का स्क्वायर मिलेगा मुझे 169/4 प्लस दिस माइनस 3√3/2 का स्क्वायर मिलेगा 27/4. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस ये होगा 196/4. तो ये बनेगा 49 का स्क्वायर रूट होगा 7. सो लेस देन और इक्वल टू 3 + 7, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी तरह से मैं अगर लिखता जा रहा हूँ. सो दिस विल बी c कितना है मेरा 3 - 7. सो दिस फंक्शन f ऑफ थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 7 इज -4.
So minus 4 will be the minimum value and plus 10 will be the maximum value of this function. So range of this function is minus 4 to 10. Minus 4 to 10 is the range of this function या 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ थीटा प्लस 5/3 प्लस 3. तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है. a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c has maximum value c plus root of a square plus b square and has minimum value c minus root of a square plus b square. So this is the answer minus 4 to 10. किस ऑप्शन में हमें ये आंसर मिलता है minus 4 to 10 and this is in the last option. इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. Now this is the question number 4. Here is given if y equal to this function, y equal to क्या दिया है sin x plus cosec x whole square plus cos x plus sec x whole square, then minimum value of this function y where x belongs to r. x belongs to r है तो इस फंक्शन y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी. ओके तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. ब्रैकेट्स पहले हम खोल देते हैं. सो यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा 1 प्लस यहाँ पे मिडल टर्म मिलेगी 2 साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स. साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स 1 बनेगा तो यहाँ पे मिडल टर्म 2, इसकी मिडल टर्म 2 कॉस एक्स इंटू सेक एक्स. कॉस एंड सेक कैंसिल हो गए, फिर से मिलेगा 2. यहाँ पे लास्ट टर्म मिलेगी मुझे कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लास्ट टर्म मिलेगी मुझे सेक स्क्वायर एक्स. ब्रैकेट्स मैंने खोल दिए हैं a प्लस बी होल स्क्वायर से. ओके सो दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स राइट एंड सेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. आइडेंटिटीज यूज़ किए हैं. सो दिस इज 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस this function tan square x plus cot square x and I have to find the minimum value of this function. So this y is greater than or equal to what, ऐसा मुझे फाइंड आउट करने का है. तो 7 तक तो हम पहुंच चुके हैं. नाउ व्हाट अबाउट tan square x plus cot square x. So tan square x and cot square x are reciprocals of each other and here is the very important concept again for you. So this function f of x plus 1 upon f of x is always greater than or equal to, always greater than or equal to 2. f of x plus 1 upon f of x किसी फंक्शन कोई फंक्शन है और उसका रेसिप्रोकल है तो उसकी सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है. इसे हम कंसेप्ट लगा रहे हैं am इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू gm की. ओके सो दिस कैसा प्रूफ होगा. tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 दिस इज am ऑफ tan स्क्वायर एक्स एंड कॉट स्क्वायर एक्स is greater than or equal to gm of tan square x and cot square x will be equal to square root of tan square x into cot square x. So like this we will write that tan square x plus this cot square x is greater than or equal to, यहाँ पे ये 1 है, 1 into 2 is 2. So tan square x plus cot square x is greater than or equal to 2 and this is a standard result. Any function plus its reciprocal function is always greater than or equal to 2. So maximum value of this function is 2 होती है, minimum value 2 होती है, 2 या 2 से बड़ा होता है. So this tan square x plus cot square x is greater than or equal to 2. So this 7 plus 2 is 9. So this function y is greater than or equal to 9. So यहाँ पे 2 है, 7 प्लस 2 कितना होगा 7 प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. 2 होगा तो 9 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो ग्रेटर देन 9 होगा. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द कंसेप्ट यूज्ड हियर. सो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 9. तो सी हियर कौन से ऑप्शन में मुझे 9 आंसर दिखाई दे रहा है. यस इट इज़ इन द थर्ड ऑप्शन. नाउ सी दिस फिफ्थ क्वेश्चन. यहाँ पे मुझे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू π/2. अल्फ़ा प्लस बीटा π/2 दिया है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फ़ा दिया है एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ tan बीटा एंड tan गामा.
ओके स्टूडेंट्स, तो पहले तो हमको ये क्लियर है कि अल्फ़ा प्लस बीटा π/2 है। सो अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अल्फ़ा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट बीटा एज अल्फ़ा प्लस बीटा π/2 है। अल्फ़ा इक्वल टू π/2 माइनस बीटा, tan अल्फ़ा इक्वल टू tan ऑफ π/2 माइनस बीटा, tan ऑफ π/2 माइनस बीटा इज कॉट बीटा। सो tan अल्फ़ा इक्वल टू कॉट बीटा होगा एंड देयर प्रोडक्ट tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा कितना होगा 1। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू π/2, देन tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा कितना होता है 1। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा। लेकिन यहाँ पे मुझे रिलेशन मिला है अल्फ़ा और बीटा का, तो मैं यहाँ से इसे ग्यामा इक्वल टू लिखता हूँ। ग्यामा इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसे मैं tan रेशो लगा देता हूँ। tan ऑफ ग्यामा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। सो दिस tan ऑफ a माइनस b विल बिकम tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू दिस tan gamma। नाउ आई हैव दिस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ये tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा कितना है 1 है। सो दिस इज 1 प्लस 1 2 इंटू tan gamma। 2 इंटू tan gamma इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा माइनस tan ऑफ बीटा। ओके, बट इन द क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा। तो यहाँ से मैं tan अल्फ़ा लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं tan अल्फ़ा लिख सकता हूँ। तो मेरा tan अल्फ़ा क्या बनेगा, tan बीटा प्लस 2 tan gamma, tan बीटा प्लस 2 tan gamma। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड gamma if alpha plus beta is π/2 and beta plus gamma equal to alpha. So see which option is correct. Tan alpha equal to tan beta plus 2 tan gamma. So this tan alpha is equal to tan beta plus 2 tan gamma again is in the third option. Now see the question number 6. In this question number 6 I have given sec alpha and cosec alpha are the roots of this quadratic equation x square minus bx plus q equal to 0. Then I have to find the relation between p and q. So मैंने पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया है x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेक अल्फ़ा. इसके रूट्स क्या है, सेक अल्फ़ा एंड सेकंड रूट इज कोसेक अल्फ़ा. सो दीज आर द रूट्स. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर ए रूट्स है तो मैं सम ऑफ द रूट्स लिखूंगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखूंगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता ही है, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाई ए. इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं जेई मेंस के, तो सभी बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना ज़रूरी है. सो सम ऑफ द रूट सेक अल्फ़ा प्लस कोसेक अल्फ़ा, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, तो ये क्या होगा पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है. सो सेक अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा इज सी बाई ए, क्यू बाई 1 क्या होगा, क्यू होगा. यस नो. ओके. नाउ अब मुझे रिलेशन फाइंड आउट करने का है पी और क्यू में. और तो अगर मैं ऑप्शंस इस क्वेश्चन के ऑब्ज़र्व करता हूँ तो मुझे हर क्वेश्चन में पी स्क्वायर की टर्म दिखाई दे रही है. तो आई विल स्टार्ट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू बाय सॉल्विंग द स्क्वायर ऑफ पी. पी स्क्वायर से मैं स्टार्ट करूँगा. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पी स्क्वायर यानी सेक अल्फ़ा प्लस कोसेक अल्फ़ा का होल स्क्वायर कर दूँगा. सो दिस बिकम्स सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 सेक अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा. ब्रैकेट मैंने खोल दिया है ए प्लस बी होल स्क्वायर. सो अगर मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व करता हूँ तो सेक अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू. सो दिस इज़ क्यू, तो ये बनेगा 2q, राइट, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज क्यू. अब इससे मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ. सो दिस इज़ 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बेसिक आइडेंटिटी है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी है.
cosec square alpha is 1 by sin square alpha, so sin square alpha plus cos square alpha is 1 by cos square into 1 by sin square हो जाएगा. So cos square alpha plus sin square alpha by 1 upon this cos square alpha into sin square alpha plus 2q. So 1 by cos square is again sec square alpha into 1 by sin square is cosec square alpha प्लस दिस 2q. ओके, वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा. सो अब आंसर मुझे मिल गया है अगेन दिस सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा. सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा क्या होगा क्यू स्क्वायर प्लस 2q. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट पी स्क्वायर. तो मिल गया है मुझे रिलेशन. नाउ दिस पी स्क्वायर कैन बी रिटन एज टेकिंग क्यू कॉमन, क्यू को हम कॉमन ले लेते हैं. सो दिस इज क्यू इंटू क्यू प्लस 2. दिस इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू. सो हियर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू क्यू प्लस 2. इन विच ऑप्शन दिस इज करेक्ट? एंड येस, दिस इज इन द सेकेंड ऑप्शन. नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 7. ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड. जैसे कि हमने पहले कहा है दीज क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड फ्रॉम फेमस जे मैथ्स का बुक सेंगेज मैथमेटिक्स से दीज क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड. सो स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन दिस साइन ऑफ 27. इसे कहा है p एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 36. ओके, तो इसे भी p के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने का है. सो हियर हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 36. तो 36 को मुझे 27 तक जाना पड़ेगा. किस तरह से मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 36 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 54. 36 प्लस 54, 36 प्लस दिस 54 कितना होता है 90 डिग्री. तो मैं साइन ऑफ 36 को कॉस ऑफ साइन ऑफ 36 को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 54. राइट, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर कॉस ऑफ 54 इज कॉस ऑफ 2 थीटा. कॉस ऑफ 54 को मैं कॉस ऑफ 2 थीटा समझता हूँ. 27 तक मुझे जाने का है. डबल एंगल मुझे दिखाई दे रहा है. कॉस ऑफ 2 थीटा इज व्हाट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो ये फार्मूला ऑफ डबल एंगल कॉस ऑफ 2 थीटा का मैं यूज़ कर सकता हूँ. सो कॉस ऑफ 2 थीटा इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. 2 थीटा यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 54 है, तो उसका हाफ एंगल मैं लिख सकता हूँ 27. ओके, नाउ हियर क्वेश्चन इज सॉल्व. स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री मिल गया है मुझे 27 डिग्री. यस नो? ओके, नाउ दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2. हियर साइन ऑफ 27 इज p. सो साइन स्क्वायर ऑफ 27 इज p स्क्वायर. सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 36 इज square root of 2 minus 2p square, and this is again in the fourth option. In this question number 8, I have given this equation cos of 2b equal to cos of a plus c divided by cos of a minus c, and I have to find that tan a, tan b, tan c are in either AP, GP और HP. tan a, tan b, tan c का रिलेशन मुझे फाइंड आउट करने का है यूजिंग दिस इक्वेशन cos of 2b इक्वल टू cos of a प्लस सी अपॉन cos of a माइनस सी. तो यहाँ पे मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करने वाला हूँ. दिस इज cos of 2b अपॉन 1. तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशोज कंपोनेंडो डिविडेंडो मैं यूज़ करूँगा. तो मैं इसे लिखता हूँ 1 माइनस cos of 2b अपॉन 1 प्लस cos of 2b. ये 1 है, एडिंग 1 इन न्यूमरेटर 1 प्लस cos 2b, 1 माइनस cos 2b माइनस ऊपर लिया है और अपॉन 1 प्लस cos 2b. सेम वैसा ही राइट साइड को हम करेंगे. सो दिस इज cos of a माइनस सी माइनस ऑफ cos of a प्लस सी. ऊपर माइनस क्या है नीचे प्लस, तो ये यहाँ पे मैं लिखूँगा cos of a माइनस सी प्लस cos of a माइनस सी. ओके, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ किया है.
सो ये फार्मूलेज आपको पता है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, सो इट बिकम्स 2 साइन स्क्वायर बी, और ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर बी, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस 2 विल गेट कैंसल। देखो राइट साइड में, अब यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले यूज़ करूँगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो माइनस सी प्लस सी कैंसिल होगा, ए प्लस ए 2a अपॉन 2 क्या बनेगा, ए इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, तो ए प्लस सी माइनस ए माइनस सी, तो यहाँ पे ए कैंसिल होगा, सी प्लस सी 2c अपॉन सी होगा सी। ओके, यहाँ पे यूज़ किया है कॉस सी माइनस कॉस डी। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी, थर्ड फार्मूला फैक्टराइजेशन। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, अगेन दिस इज प्लस सी प्लस डी बाई 2, तो माइनस सी प्लस सी कैंसिल होगा, ए प्लस ए 2a बाई 2a इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पे माइनस 2a बाई 2 कितना मिलेगा, a मिलेगा, माइनस 2c बाई सी इज c, कॉस ऑफ c मिलेगा। सो दिस 2 विल गेट कैंसल, सो हियर इज tan स्क्वायर b इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए इज व्हाट, tan a, एंड साइन c अपॉन कॉस c इज व्हाट, tan c। सो tan स्क्वायर b इक्वल टू tan a इंटू tan c, दिस इज the relation of GP. It means tan A, tan B, tan C, tan A, tan B, tan C, tan A, tan B and tan of C are in what, GP। तो यही उसका करेक्ट आंसर है, tan A, tan B, tan C are in GP। So GP is in the second option। Now see this question number 9, here alpha is given as, see the question number 9, alpha दिया है लेस देन पाई ग्रेटर देन 3 पाई बाई 4, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो है ही, लेकिन ग्रेटर देन 3 पाई बाई 4 भी दिया है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉट अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। तो इससे पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cot alpha 1 upon sin square alpha is cosec square alpha and cosec square x is equal to 1 plus cot square x. So it is 1 plus cot square of alpha, ये बनेगा cosec square alpha, cosec square alpha is what, 1 plus cot square alpha, and now here is a square plus 2ab plus b square, a square plus 2ab plus b square। So this is 1 plus cot alpha का square होगा, and square root of x square, again modulus function, square root of x square is mod of x, so this is mod of 1 plus cot alpha। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसीलिए हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया था अल्फ़ा इज लेस देन पाई ग्रेटर देन 3 पाई बाई 4। तो इस कंडीशन में 1 प्लस कॉट अल्फ़ा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर 1 प्लस कॉट अल्फ़ा पॉजिटिव है तो 1 प्लस कॉट अल्फ़ा आंसर आएगा, अगर 1 प्लस कॉट अल्फ़ा निगेटिव है तो माइनस ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फ़ा यानी -1 माइनस कॉट अल्फ़ा इसका आंसर आएगा। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कॉट अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन पाई ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2। इसके लिए हम कॉट अल्फ़ा का ग्राफ ही देखते हैं। सीधा कॉट अल्फ़ा 0, यहाँ पे एंगल ले लेते हैं पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। सो दीज आर द लाइन्स ऑफ पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई। ओके, तो कॉट अल्फ़ा का मैं ग्राफ निकाल रहा हूँ और मुझे इसकी वैल्यूज़ देखने की है इफ़ इट इज़ लेस देन पाई ग्रेटर देन 3 पाई बाई 4। सो हियर कॉट अल्फ़ा कॉट पाई बाई 2 0 होता है। सो यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनेगा, कॉट पाई बाई 2 0 लाइक दिस, एंड 3 पाई बाई 2 पे भी 0 होता है, पाई और 2 पाई पे नहीं डिफाइन होता है, तो इस तरह से मुझे कॉट का ग्राफ मिलता है। ओके, सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स, एंड हियर इज़ +1 एंड हियर इज़ -1। ओके, तो यहाँ पे पाई बाई 4 होगा, तो पाई बाई 4 पे 1 माइनस पाई बाई 4 पे यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी, -1 यहाँ पे देखिए। तो 3 पाई बाई 4 यहाँ पे है, पाई बाई 2
दिस एंगल इज 3 पाई बाय 4, दिस एंगल इज व्हाट 3 पाई बाय 4। तो एंगल यहाँ पे है अल्फ़ा, राइट। सो 3 पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे -1। सो इफ अल्फ़ा इज लेस देन पाई ग्रेटर देन 3 पाई बाय 2, सो इन दैट केस ये देखिए -1 के लाइन पे, तो यहाँ पे लेस देन -1 होगा, कॉट अल्फ़ा विल बी लेस देन -1 इफ़ अल्फ़ा इज लेस देन पाई ग्रेटर देन 3 पाई बाय 4। या आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। सी हियर दिस इज़ द 3 पाई बाय 4, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे पाई है, कॉट ऑफ 3 पाई बाय 4 कितना होता है -1। कॉट ऑफ पाई डिफाइन नहीं होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। सो कॉट की वैल्यू कैसी होगी, कॉट की वैल्यू कैसी होगी 0, -1 और यहाँ पे है माइनस नॉट डिफाइंड। तो इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन पाई ग्रेटर देन 3 पाई बाय 4, सो कॉट अल्फ़ा इज़ लेस देन -1, कॉट अल्फ़ा इज़ लेस देन -1 होगा। ओके, सो लेस देन -1, तो अब देखिए 1 प्लस लेस देन -1, 1 प्लस लेस देन -1 कैसा होगा, निगेटिव होगा। 1 प्लस कॉट अल्फ़ा इज निगेटिव होगा, दिस विल बी लेस देन 0 एंड मॉड ऑफ x इक्वल टू -x इफ़ x इज़ लेस देन 0, तो इसे मुझे माइनस साइन ही लगाना पड़ेगा, माइनस ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फ़ा and this minus of 1 plus cot alpha is -1 minus cot alpha. So this is the answer to this question number 9, -1 minus cot alpha। ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है, -1 minus cot alpha is in the second option। And this is the last question of this first lecture of trigonometric ratios and identities for JEE Main। Question number 10 last question है, and in this question I have given these two sets, P and Q are two sets। Here P set is theta is such that sin theta minus cos theta equal to √2 cos theta। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और Q सेट दिया है, थीटा इज सच दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ऑप्शन देखिए, हमें फाइंड आउट करने का है P और Q का रिलेशन, ऐसा फाइंड आउट करने का है वेदर P इज सबसेट ऑफ Q, Q इज सबसेट ऑफ P या Q सेम है, इस तरह का हमें रिलेशन फाइंड आउट करने का है। सो दिस सेट P को हम सॉल्व करते हैं। सेट P को हम सॉल्व करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा है। ओके, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू √2 प्लस 1, कॉस थीटा को मैंने शिफ्ट किया है राइट साइड में, कॉस थीटा कॉमन लिया है, √2 प्लस 1 कॉस थीटा, एंड दिस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सो हियर टेन थीटा इज √2 प्लस 1। P सेट को सॉल्व करके मुझे ये रिजल्ट मिला है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस 1। नाउ आई विल सॉल्व दिस सेट Q सेट को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मेरा रिलेशन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 टाइम्स साइन थीटा, तो यहाँ से मुझे कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लूँगा, √2 माइनस 1 साइन थीटा होगा, राइट। अब देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन बाय कॉस, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, √2 माइनस 1। यहाँ पे tan थीटा √2 प्लस मिला है, tan थीटा √2 माइनस 1 मिला है। सो सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √2 माइनस 1, 1 अपॉन √2 माइनस 1 साइन बाय कॉस 1 अपॉन √2 माइनस 1 होगा। अगर मैं इसे रैशनलाइज करता हूँ, √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ से मुझे मिलेगा √2 प्लस 1। तो देखें यहाँ पे भी मुझे tan थीटा √2 प्लस 1 मिला है, यहाँ पे भी मुझे tan थीटा √2 प्लस 1 मिला है, यानी P एंड Q सेट्स आर इक्वल सेट्स। सो देयरफॉर P इक्वल टू Q इज़ द आंसर टू दिस लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट आंसर इसका करेक्ट है, P इक्वल टू Q। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर, और ये थे हमारे आज के
10 important questions of JEE Main of the topic trigonometric ratios and identities. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with again 10 important questions. Okay students, bye.